Chapter number 13, probability. So all of you know what is probability? Probability is a measure of, it's a measure of uncertainty of occurrence of any event. And a measure of uncertainty of occurrence of any event is known as probability. So in our previous standard, that means in standard 11, we have studied axiometric approach of probability. Axiometric approach of probability. Now we will study some further concepts of probability. Done? So in our 12th standard, we have to study first topic, that is our conditional probability. First topic that we have to study in this chapter is conditional probability. Conditional probability. So to understand what is the conditional probability, we will consider one example. एक example से start करेंगे and then one by one we will discuss all the technical terms. Done? So let's start with one example. The experiment, the random experiment is, and all of you know what is random experiment, what is event, what is total number of outcome, what is favorable outcomes, वो सब आपको पता है, sample space वो सब. So let us consider one random experiment. One random experiment, that random experiment of tossing a coin twice. Tossing a coin twice. That is our random experiment. One coin is there, we have to toss that coin twice. So what is the sample space of this random experiment? है ना, sample space क्या होता है? Sample space is the collection of all possible outcomes of a random experiment. All possible outcomes of random experiment. Here our random experiment is tossing a coin twice. हमारे पास एक coin है, वो coin को हम twice, two times toss कर रहे हैं. So total possible outcomes, है ना, और random experiment होगा कि एक coin को दो बार toss करना. So total number of possible outcomes in tossing a coin twice are tail, है ना. पहली बार आपने coin को toss किया, T मिला, दूसरी बार toss किया तो T मिला, first case. या फिर first we are getting tail and second time we are getting head, so TH. या फिर ऐसा भी हो सकता है, first time we are getting head and second time we are getting tail, or it may be we are getting head on first trial and also head in second trial. These are the all possible outcomes in tossing a coin twice. Done? This is our sample space. Now we are defining two events. Let's say event A and event B. Event A and event B. Defining two events, event A and event B. Event A is exactly one head, getting exactly one head. Getting exactly one head. And event B is, suppose, getting at least one head. ये दो इवेंट्स हमने डिफाइन किए, है ना. ये सब हम खुद से अज्यूम कर रहे हैं. कहाँ से स्टार्ट किया कि हम एग्जांपल कर रहे हैं. कौन सा एग्जांपल? वन रैंडम एक्सपेरिमेंट. व्हाट इज द रैंडम एक्सपेरिमेंट? टॉसिंग अ कॉइन ट्वाइस. Then we are getting sample space and also we are assuming two events. First event is in tossing a coin twice, we are getting the exactly one head, and another event in which we are getting at least one head. These are the two events.
So now, which are the favorable outcomes in this? Getting exactly one head in tossing a coin twice. एक कॉइन हम दो बार टॉस कर रहे हैं, उसके अंदर एग्जैक्टली मतलब ना तो एक से ज्यादा ना तो एक से कम, एग्जैक्टली वन हेड आए, वैसी इवेंट कौन कौन सी है? टू इवेंट्स आर देयर. फर्स्ट इज टी एच and second one is HT. These are the possible outcomes, or you can say favorable outcomes in which getting exactly one head. Event B. Event B के अंदर कौन से outcomes आ सकते हैं? Getting at least one head. बोलो at least one head, उसका मतलब क्या होता है ना? थोड़ा वर्ड पर कॉन्सेंट्रेट करो. एट लीस्ट का मतलब होता है मिनिमम वन हेड होना चाहिए. आपने एक कॉइन को दो बार टॉस किया, तो वो जो कॉइन है उसको आप दो बार टॉस कर रहे हो, उसके अंदर मिनिमम एक बार है ना, उसका जो एक आउटकम है वो मिनिमम एक वन हेड होना चाहिए. तो देखो कितनी इवेंट्स है. टेल ले तो उसके अंदर कोई हेड आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो उसके अंदर तो कोई भी हेड नहीं है. रिक्वायरमेंट है एटलीस्ट वन हेड होना चाहिए. टी एच वन हेड आ गया, एटलीस्ट वन आना चाहिए, वन से ज्यादा होगा तो चलेगा. एच टी वन हेड आ गया, एच दो हेड है, एटलीस्ट वन चाहिए तो दो भी चलेगा. तो दिस आर दी फेवरेबल आउटकम्स फॉर दिस इवेंट बी. क्लियर? दो इवेंट डिफाइन किया ना, अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम खुद से अज्यूम कर रहे हैं और सब खुद से ही डिफाइन कर रहे हैं ताकि हम अपने ट्रैक पर जा सके. धीरे धीरे हम अपने ट्रैक पर चले जाएंगे. सो दो इवेंट डिफाइन की. गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड तो ऐसे आ गया, गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड तो ये आ गया. ये इवेंट है. प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी इज द मेजर ऑफ अनसर्टिनिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट. प्रोबेबिलिटी हम इवेंट की डिफाइन करते हैं, तो चलो डिफाइन करते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए है ना, पी ऑफ ए. ये तो आपको सबको पता है कि पी ऑफ ए का मतलब क्या होता है. पी ऑफ ए होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एनी इवेंट ए. सो इवेंट ए इज गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड है ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमें अभी लिखनी है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट ए. सो एक्सोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी दैट वी हैव डिस्कस इन आवर 11th स्टैंडर्ड, उसमें अपने स्टडी किया था कि कोई भी इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो वो क्या होती है? वो होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ईच आउटकम. दैट मीन्स वो होता है पी ऑफ टी एच प्लस पी ऑफ एच टी है ना. प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ दिस आउटकम, फर्स्ट टेल आए उसके बाद हेड आए, और पहले हेड आए है ना, एंड, ये वर्ड में बोलेंगे तो एंड आएगा, एंड पहले हेड आए और या फिर उसके बाद टेल आए. दिस इज द एक्सियोमेटिक अप्रोच ऑफ फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी, दैट इज पी ऑफ ए. सो नाउ टेल मी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पी ऑफ टी एच. टेल आने की प्रोबेबिलिटी, टेल एंड हेड, पहले टेल आए एंड उसके बाद हेड आए, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है कॉइन के अंदर? कॉइन के अंदर टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होते हैं? टू आउटकम्स आर देयर, या फिर टेल हो सकता है या फिर हेड. टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, तो इसका होगा 1/2, एंड हेड आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड वो भी 1/2, इट्स 1/2 इंटू 1/2 प्लस है ना, या फिर कैसे होगा? एटलीस्ट एग्जैक्टली वन है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड, तो एग्जैक्टली वन हेड कब आएगा? या तो पहले टेल आ जाए एंड उसके बाद एच आए, और दूसरा केस पहले हेड आ जाए एंड उसके बाद टेल आए, तो ये प्लस. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एच एंड टी, सो एच की प्रोबेबिलिटी 1/2 एंड टी की प्रोबेबिलिटी 1/2, so this is equal to 1/4 plus 1/4, this is equal to 2/4 and this is equal to 1/2. So probability of getting event A is 1/2 by axiomatic approach of probability, है ना. ये 11th स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट यूज किया है, यहाँ पर हम 10th स्टैंडर्ड का यूज कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं. कैसे आएगा 1/2 आंसर? देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड है ना, एग्जैक्टली वन हेड. ये एक्सोमेटिक अप्रोच था स्टैंडर्ड 11 का. अभी 10th स्टैंडर्ड में जो स्टडी किया था शायद किसी को याद होगा, उसमें हम क्या कर रहे थे? टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ए,
we are getting total number of favorable outcomes. So probability of getting exactly one के head के लिए favorable outcome कितने हैं 2 upon total number of outcomes कितने हैं 1 2 3 4 so 2 by 4 तो यहाँ पर ये डायरेक्ट आंसर आएगा 1 by 2. ये भी स्टैंडर्ड 11 में स्टडी किया है, ये स्टैंडर्ड 10 में स्टडी किया है. डन. ये बात की हमने इवेंट ई की भी थोड़ी सी बात कर ले, है ना. दोनों अप्रोच से इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी निकाले. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट बी, है ना, 10th स्टैंडर्ड की बात करके यहाँ पर छोटे से में यहाँ पर लिख देते हैं. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट बी? Getting at least one head. So number of favorable outcomes are 1, 2 and 3. So it's a 3 upon total number of outcomes 3 by 4. So probability of getting event B is 3 by 4. By using the formula of standard 10, तो आंसर आ गया 3 by 4. अगर हमें एक्सियोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी यूज करनी है इवेंट बी के लिए तो यहाँ पर आएगा, है ना. व्हाट इज द इवेंट इज गेटिंग एटलीस्ट वन हेड. तो वन हेड एटलीस्ट लाना है. तो वन हेड लाने के लिए हमारे पास टोटल कितने ऑप्शन है? देखो, पहले टी आए एंड उसके बाद एच आए, या फिर और पहले हेड आए उसके बाद टेल आए, है ना, हेड एंड टेल, या फिर दैट मीन्स और वी आर गेटिंग हेड एंड हेड. 3 पॉसिबिलिटीज आर देयर. इसकी प्रोबेबिलिटी लिखनी है तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पर लिखते हैं, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट बी तो वो होगा पी ऑफ टी एच प्लस पी ऑफ एच टी प्लस पी ऑफ एच एच. डन. इसकी प्रोबेबिलिटी टेल का होता है 1/2, हेड होता है 1/2 और प्लस हेड 1/2, टेल 1/2 प्लस हेड 1/2, हेड 1/2, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 वो होता है 3/4. सेम आंसर आ गया 3/4. डन. दिस इज आवर एक्सियोमेटिक अप्रोच टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ए और बी. नाउ इन आवर 12th स्टैंडर्ड, ये तो बात हुई स्टैंडर्ड 10 और स्टैंडर्ड 11 की. नाउ और स्टैंडर्ड 12 इज अबाउट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. तो इसका यूज करके हम फाइंड करेंगे व्हाट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. सो बिफोर डिस्कसिंग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी we will write the definition of conditional probability and some properties of conditional probability, है ना. पहले उसकी डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद डिफाइन करते हैं एग्जांपल के थ्रू. डन. सो फर्स्ट राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. अभी हमें स्टडी करना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? सो लेट्स ए एंड बी आर टू इवेंट्स associated with the some sample space S of an experiment. Let's assume that event A and event B. Event A and event B are the events which are associated with some sample space S of an experiment. Sample space S of an random experiment. Done. Then the probability of occurrence of event A when event B is already occur, है ना. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? We have to find the probability of one event A when another event is already occur. ये क्या होता है वो हम एग्जांपल करेंगे तब समझ में आ जाएगा. अभी आपको सिर्फ डेफिनेशन कंसीडर करनी है. So what is the conditional probability? The probability of occurrence of the event A when probability of occurrence of event A when event B has already occurred.
So probability of occurrence of event A when event B has already occurred is known as conditional probability of A, and which is denoted by, and इसको लिखेंगे कैसे, probability of occurrence of event A when event B is already occurred, इसको लिखेंगे probability of occurrence of event A by B. Event B is already occurred, that is P of A by B. डन. और इसका फॉर्मूला होता है, इसको कैसे फाइंड करेंगे. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए व्हेन इवेंट बी इज ऑलरेडी अकर्ड इज रिटन एज पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी. पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी, ये इसका फॉर्मूला है. डन. इसका मतलब क्या हुआ वो समझने के लिए हम कंसिडर करेंगे एक एग्जांपल. डन. Probability of occurrence of event A. That means probability of occurrence of event B is based on this condition of occurrence of event B, and event B is already occurred. Done. So let's consider one example. कौन सा एग्जाम्पल करें, ये वाला एग्जाम्पल करें. इवेंट ए इवेंट बी वाला कहाँ लिखा था, ये रहा. देखो मैंने इवेंट ए एंड इवेंट बी डिफाइन की थी, है ना, सेपरेटली डिफाइन की थी. अभी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे ए, है ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन इवेंट बी इज ऑलरेडी अकर्ड, ये निकालना है. सपोज दिस आर द, this is sample space S, this is event A and this is event B. Now I have to find the probability of occurrence of event A condition that event B is already occurred. अभी मुझे P of A by B निकालना है, तो ये कैसे निकालेंगे देखो. So here it is given that event B is already occurred. Done. So event B is already occurred. So what is the event B? Getting at least one head. हमने एक कॉइन दो बार टॉस कर दिया. देखो इसका मतलब वर्बल मीनिंग क्या होता है. हमारे पास एक कॉइन था, वो कॉइन को हम दो बार टॉस कर रहे थे, है ना. दो बार टॉस करने के बाद हमारे पास इवेंट भी ऑलरेडी आ चुका है. कौन सा? गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, है ना. टॉसिंग अ कॉइन ट्वाइस, उसके अंदर हमारे पास इवेंट आ गई. कौन सी? इवेंट बी. इवेंट बी इज ऑलरेडी अकर एंड दैट इवेंट बी इज गेटिंग एटलीस्ट वन हेड. हमारे पास कम से कम एक हेड आना चाहिए, और उसके अंदर हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए. कौन सी प्रोबेबिलिटी? कि जो एटलीस्ट वन हेड आता है उसके अंदर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड. क्वेश्चन समझ में आया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन इवेंट बी इज ऑलरेडी अकर. उसका मतलब ये हुआ कि इवेंट बी ऑलरेडी हो चुकी है. इवेंट बी कौन सी है? गेटिंग एटलीस्ट वन हेड. गेटिंग एटलीस्ट वन हेड. तो ये इवेंट के अंदर हमें फाइंड करना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, इसके अंदर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड. तो इसके अंदर एग्जैक्टली वन हेड आए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है. सो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज नथिंग बट दी, ये फॉर्मूला ए इंटरसेक्शन बी. ए इंटरसेक्शन मीन्स ये दोनों के बीच में कॉमन इवेंट कौन सी है? टी एच एच टी, टी एच एच टी. सो टू कॉमन इवेंट्स आर देयर, सो इट्स टू अपॉन पी ऑफ बी, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट बी. कितने हैं यहाँ पर देखो, 1 2 and 3. इट्स 2/3. आंसर. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड व्हेन इवेंट बी इज ऑलरेडी बीन अकर्ड. तो वो आंसर आएगा 2/3. थोड़ा सा समझ में आया या फिर सब कुछ समझ में आ गया? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, है ना. आपको क्या कंसीडर करना है कि इवेंट भी ऑलरेडी हो चुका है. हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है, एक जो कॉइन है उसको दो बार टॉस करना. तो एक कॉइन को दो बार टॉस करेंगे तो ये टोटल 4 पॉसिबल आउटकम्स है. लेकिन हमारी इवेंट बी जो हो चुकी है वो कौन सी है? गेटिंग एटलीस्ट वन हेड. दैट मीन्स अभी जो एटलीस्ट वन हेड आ रहा है उसमें से हमें फाइंड करना है ना. प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए वो कंडीशन पर डिफाइंड है. कौन सी कंडीशन पर? कि इवेंट बी पर कंडीशन, वो जो इवेंट बी है उस पर डिफाइंड है. इवेंट बी क्या है? एटलीस्ट वन हेड होना चाहिए. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड व्हेन ऑलरेडी वी आर गेटिंग एटलीस्ट वन हेड? जब हम एटलीस्ट वन हेड, है ना, गेन कर रहे हैं,
वो कंडीशन पर एग्जैक्टली वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी कौन सी है। तो एटलीस्ट वन हेड हम अचीव कर रहे हैं, उसके अंदर टोटल 3 पॉसिबल आउटकम्स है, उसके अंदर एग्जैक्टली वन हेड कब आएगा, 2 सिचुएशन पर। So it's a 2/3 is the answer. Done. इसको बोलेंगे हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. So now we are writing properties, certain properties of this conditional probability. ये conditional probability की definition हो गई. Now we are writing properties. Properties use करेंगे example में. Properties of conditional probability. So first probability. Let's say event E and event F are the events of sample space S of a random experiment. Two events are there, E and F. यहाँ पर हमने assume किया है event A and event B. Now इसकी जगह पर ले लिया है event E and event F. So if they are the events of sample space S, so conditional probability of sample space S when event F has already been occurred, or probability of getting event E when event F has been already occurred, that is equal to 1. Done. First property. Second property, if A and B are two events of sample space S and F such that event probability of occurrence of event F is not equal to 0, then probability of occurrence of two events A union B when event F has already been occurred, है ना, probability of occurrence of A union B when event F has already been occurred, that is equal to A union B. तो A union B होता है P of A plus P of B minus P of A intersection B F, है ना, ये फॉर्मूला था सेट में A union B इक्वल टू A, आप यहाँ पर P लिख दो, P of A plus P of B minus P of A intersection B. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तो डिवाइड बाय F लिखना होगा. डन, ये फॉर्मूला है. उसके बाद म्यूचुअली exclusive events are there. If A and B are mutually exclusive events, so for that A intersection B is equal to 5 for mutually exclusive events. So if A and B are mutually exclusive events, A intersection B will be 5, this will be 0. Then this formula will be equals to only P of A by F plus P of B by F for the mutually exclusive events. Done. सेकेंड प्रॉपर्टी. उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी थी कॉम्प्लीमेंट वाली थी. सो इट्स अ P ऑफ A dash B. So it's a U minus और यू कैन से 1 minus A by B, है ना, वहां पर यूनिवर्सल सेट था, यहाँ पर आएगा 1. So that is equal to 1 minus P of A by B. Done. So these are the three properties that we will be used in our numericals. डेफिनेशन और ये 3 प्रॉपर्टी, इतना समझ में आया अभी? ओके, चलो लेट्स स्टार्ट और एक्सरसाइज 13.1 फॉर्मूला का यूज करके प्रोबेबिलिटी निकालनी है. फॉर क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 अप टू 5, है ना, फॉर्मूला ऐसे भी यूज करना है. सो लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1. Question number 1 of exercise 13.1. So given that E and F are the events such that given P of E is 0.6, P of F is 0.3, P of E intersection F is 0.2, find P of conditional probability of event E when event F has already been occurred, ये फाइंड करना है, and conditional probability of event F when event E has already been occurred, ये फाइंड करना है. डन.
तो फॉर्मूला क्या आएगा बोलो, ये फाइंड करना है सपोज P ऑफ E बाई एफ, है ना। तो इसका फॉर्मूला मैंने लिखवाया, क्या होगा P ऑफ E बाई एफ अपॉन P ऑफ एफ। कंडीशनल है ना, E बाई एफ क्या होता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट E व्हेन इवेंट F हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड, so it's a P of E by F upon P of F. So P of E by F given 0.2, देखो कितना सिंपल है, अपॉन P of F, P of F 0.3, तो क्या आंसर आएगा P of E by F इक्वल टू 2/3। डन। सेम वे फाइंड P of F by E, तो ये क्या होगा P of F इंटरसेक्शन E अपॉन P of E, P of F इंटरसेक्शन E गिवन E इंटरसेक्शन F बोलो या फिर F इंटरसेक्शन E बोलो, दोनों सेम ही होता है, दैट इज इक्वल टू 0.2 अपॉन P of E, P of E is given 0.6, so it's a 2/6, आंसर इज 1/3, है ना, कुछ नहीं है इसमें, सिंपल सेम एज क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ A by B, that means probability of occurrence of event A when event B is already occurred if P of B is 0.5 and P of A intersection B इक्वल टू 0.32। ये सब सारे सम्स क्यों दिए हैं, ये जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है ना वो हमें अच्छी तरह से याद रह जाए इसलिए, है ना, ये सब एग्जाम में नहीं आने वाला है। So it's a P of A by B equal to P of A by B upon P of B. So P of A by B 0.32 upon P of B 0.5. So this will be 32 upon 50. डबल कर दो 64 upon 100 0.64 is the answer. पॉइंट में लाओ या फिर फ्रैक्शन में लाओ तो भी चलेगा। Is that clear students? है ना, टाइम है तो अभी 2-3 सम्स और भी ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। सो हियर P of A is 0.8, P of B is 0.5, P of B by A is 0.4. So first case find P of A intersection B. तो P intersection B के लिए क्या होगा, find P of A by B, third P of A union B, ये तीन निकालना है। सो फर्स्ट B by A दिया हुआ है तो वहां से स्टार्ट करें, P of B by A, है ना। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence ऑफ इवेंट B when event A is already been occurred, so it's a P of B intersection A upon P of A। तो देखो यहाँ पर P of A is given, yes, P of B by A is given, yes, so we are getting P of B intersection A, so P of B intersection A equal to P of B by A into P of A, B by A 0.4 into P of A 0.8, so B intersection A is nothing but the A intersection B and that is equal to 0.32। फर्स्ट आंसर मिल गया। सो नाउ यू कैन फाइंड A by B, मिलेगा P of A by B, सिंपल P of A intersection B upon P of B। What is A intersection B? फर्स्ट से मिला 0.32,
upon P of B given 0.5. अगेन 32/50 0.64, या फिर आप इसको 16, इसको 25 है ना, 16/25 भी लिख सकते हो। थर्ड, P ऑफ A यूनियन B। तो A यूनियन B के लिए हमें पता है ना, A एंड B आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, सो इट्स P ऑफ A प्लस P ऑफ B है ना, A यूनियन B माइनस P A इंटरसेक्शन B। सेट थ्योरी सबको शायद याद होगी। इट्स 0.8 प्लस 0.5 माइनस A इंटरसेक्शन B 0.32। तो ये क्या होगा, 132 माइनस 32, 132, 130 माइनस 32, 98, 0.98। डन। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। समझ में आ रहा है सबको, है ना? ये सब खुद से ट्राई करना है आपको। कुशल, evaluate A union B if twice of P of A equal to P of B equal to 5/13, and also P of A intersection B is 2/5। ए यूनियन बी निकालना है, तो ए यूनियन बी निकालने के लिए ए इंटरसेक्शन बी चाहिए। सो वी विल स्टार्ट विद द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, है ना। सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज पी ऑफ ए बाई बी। इसका फॉर्मूला होता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई पी ऑफ बी। सो पी इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी मिलेगा, क्या मिलेगा, पी ऑफ ए बाई बी इंटू पी ऑफ बी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, पी ऑफ ए बाई बी गिवन 2/5, 2/5 मल्टीप्लाई बाई पी ऑफ बी गिवन 5/13। सो पी इंटरसेक्शन बी इज 5 कट, पी ए इंटरसेक्शन बी इज 2/13। हमें इंटरसेक्शन नहीं यूनियन चाहिए, तो अगेन लास्ट में फॉर्मूला यूज किया, पी ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होता है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन बी निकालना है तो इसके फॉर्म में लिखे फॉर्मूला, इट्स अ पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, ये माइनस में आ जाएगा, तो इट्स अ पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी। सो पी ऑफ ए, व्हाट इज पी ऑफ ए, twice of P of A equal to 5/13, so P of A will be 5/26, 5/26 plus P of B is 5/13 minus P of A union B, A union B निकालना था, तो ये वैसे ही हमने मिस्टेकली किया, ये निकालना है, सो माइनस P इंटरसेक्शन B, तो होगा 2/13। डन। 26 एलसीएम ले तो 5 प्लस 10 माइनस 4, 5 माइनस 4 1 प्लस 10 11, 11/26 इज द आंसर, पी ऑफ ए यूनियन बी, है ना। इंटरसेक्शन तो निकाल दिया हमने, तो यही निकालना था, सिंपल। सो ट्राई क्वेश्चन नंबर 5 by yourself. Done. So that is up to question number 5.